We start with some shocking footage from a hotel in Andhra Pradesh in Chhattisgarh where a table tennis team was staying. The CCTV footage shows a man, allegedly 19-year-old coach of the team, dragging a girl, apparently a team member, out of a room. The girl can be seen fighting the coach. A few minutes, entire girls' team is seen in the corridor, visibly shaken with what transpired a few minutes ago. Right. At the moment, I'm joined by Sharat Shukla, who is the president of the Chhattisgarh Table Tennis Association. शुक्ला जी, हम इस वक्त सिर्फ तस्वीरें देख सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन अब इसको करीब 2 हफ्ते हो गए हैं इस हादसे को. आपने इसकी इन्वेस्टिगेशन की होगी, बता सकते हैं कि उस रात हुआ क्या था? जी, 21 तारीख को मेरे पास इसकी रिपोर्ट आई है. हेलो, 21 तारीख को शिकायत हुई थी मेरे पास इसकी, और इसके बाद तुरंत हमने जांच कमेटी पर जांच करने के लिए लिखा. और वहां पर जो पता लगा हमको, बच्चे मोबाइल को आपस में छीन रहे थे. सर ये छीना झपटी ही और कुछ नहीं है. मोबाइल की छीना झपटी ही है और कुछ भी नहीं है. सर, आप ये बोल रहे हैं कि 19 साल के वो कोच हैं और वो 12-13 साल की लड़की हैं, और ये जो हो रहा है ये सिर्फ मोबाइल की छीना झपटी है, ये आप कह रहे हैं इस वक्त? सीधा स्पष्ट दिख रहा है सर. सीसीटीवी फुटेज में आप देख लीजिएगा कि उसके हाथ से मोबाइल गिरा, मोबाइल उठाकर वो चला गया. ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि ये सीना झपटी है या सिर्फ मोबाइल को छीना जा रहा है, तो आप ये बताएं कि आपने सस्पेंड क्यों कर दिया है दोनों कोच और उन जो प्लेयर हैं उन दोनों को? वो हमने कोच को सस्पेंड किया है, इस बात के लिए सस्पेंड किया है कि रात के 1 बजे तक के बच्चे क्यों बाहर में घूम रहे थे. आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप बच्चों को कमरे के अंदर में रखें. आप कोच और मैनेजर बनकर गए हैं, और जांच जब तक चल रही तब तक के लिए उसको सस्पेंड किया गया है. तुरंत कार्रवाई की प्रथम दृष्टया. अगर आप कह रहे हैं कि ये जो प्लेयर थी ये बाहर थी इतनी रात को, आप कोच को सस्पेंड कर रहे हैं, आप क्या खिलाड़ी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? खिलाड़ी के खिलाफ कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी जांच पूरी होने के बाद. दूसरी बात यह है कि आप जैसे कह रहे हैं आपने कोच को सस्पेंड कर दिया है, बतौर छत्तीसगढ़ टेबल टेनिस एसोसिएशन ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप एक 19 साल के लड़के को कोच बतौर भेज रहे हैं एक अंडर 14 अंडर 15 की जो टीम है उसके साथ? जितनी भी लड़कियां गई थी उनके सबके साथ उनके माता पिता गए थे, वो भी वही पास में ठहरे थे सब लोग. तो ये माता पिता होने के बावजूद ये हो रहा है? जी, वो सब लोग वही थे वहां पे. तो उसके बावजूद ये सब हुआ है जो हम देख रहे हैं इस वक्त? ये देखने में आया है जी. Okay, we also joined on the phone line by Dhanraj Chaudhary. He is the General Secretary of the Indian Table Tennis Association. Sir, thanks so much for joining us. Have you, as the national body, taken cognizance of this? Yes, Mr. Nikhil, this is the unfortunate incident has happened and came to us only 2 days before. And we have asked the Chhattisgarh Table Tennis Association to give us the complete report. And until and unless the report doesn't come, I can't give any comment. Right. But So I was very much present in the Rajmundri, and even our president was there, and nobody has reported any incident which has happened or which has occurred there. Right. So you just heard it from the president of the Chhattisgarh Table Tennis Association. He says that this was just an incident of, snatching a mobile, the player and the coach involved. There is nothing, wrong with what's happening at the moment. So if that is the case, why would you want to have an inquiry and why would you have to wait for an inquiry? It's best to dismiss the case. No. That may be his personal comment, but I told him very, very clearly we want a independent, neutral inquiry, and want to know the fact what has really happened. So, sir, are you really very unhappy about the person? They have nominated a coach with the team of 19-year-old. Okay, so sir, from really your objectionable. Right, so from your comment, it looks like that the TT Federation of India is taking a very, very serious look at this entire matter. However, what we're getting to hear from the Chhattisgarh Table Tennis Federation is they're making light work of this entire thing. Are you then disappointed with the state association? Definitely. You see, whatever the comments they are making, without having any inquiry. It is not justifying their statement. So we need to have a full inquiry, and on
17th, we are having the executive board meeting where we will discuss this matter in length. ओके शरद शुक्ला जी, मुझे पता नहीं आपको अगर सुनाई दिया नहीं, हमारे साथ धनराज चौधरी हैं जो आप जानते हैं सेक्रेटरी जनरल हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। उनका कहना है कि आप इस मामले को बहुत हल्के में ले रहे हैं, ये सिर्फ मोबाइल छीनने का मामला नहीं था, ये गंभीर मामला था, लेकिन आपकी फेडरेशन बहुत हल्के में ले नहीं ले रहा हूं सर, मैंने उनको सस्पेंड किया है और अगर कोई होगा तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर में। लेकिन सर आपने शुरू में तो इसको दरकिनार कर दिया कहते हुए कि ये तो बड़ी चीज सिर्फ मोबाइल छीनने का मामला है, जबकि नेशनल फेडरेशन के तो कह रहे हैं ये बहुत गंभीर मामला है। अब गंभीर मामला है सर, तभी तो उसको सस्पेंड किया गया सर। अब जांच, जैसे जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसका कड़ी कार्रवाई की जाएगी सर। तो आपने कैसे अनुमान लगाया कि ये सिर्फ मोबाइल छीनने का मामला ही है? जो फुटेज दिख रहा है सर, सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है, उसमें वो दिख रहा है कि मोबाइल छीनने का है। बच्चे भी यही बोल रहे थे कि मोबाइल छीने झपटी हो रही थी। अच्छा, दूसरी चीज आप मुझे बताइए, ये हुआ है पिछले साल दिसंबर में, 25 तारीख को सीसीटीवी फुटेज की डेट दिखा रहे हैं यहाँ पर, 25 तारीख को हुआ है। अब तो करीब 2 हफ्ते हो गए, अभी तक जांच पूरी नहीं हो पाई। आपको कम से कम कुछ सरसरी तौर पे तो पता चला होगा। हमारे पास कंप्लेंट 21 तारीख को आई है जी, फिर से बोलिए। कंप्लेंट आई है, हमने उनको भावेश आपके से लेटर जारी करके उनसे सवाल जवाब किया है, उनका जवाब लेने के बाद भी कार्रवाई की है। किस तारीख को आप कह रहे हैं आपके? जी मैं सुन नहीं पाया, किस तारीख को आप कह रहे थे आप तक कंप्लेन आई है? 31/12 की रात को आया है। चलिए 31 भी मानूंगा, 2 हफ्ते फिर भी हो गए हैं। 14 जनवरी आप पहुंची है यहाँ पर, तो आप कहते हैं कि 8 तारीख को हमने सस्पेंड किया भावेश आपके को, 8 तारीख को। नहीं, आपने सस्पेंड किया, लेकिन अभी तक आप जो हमें बता रहे हैं वो वही बता रहे हैं जो हमें खुद, जो टीवी स्क्रीन पे हम अनुमान लगा रहे हैं, आप भी अनुमान लगा रहे हैं। 14 दिन में बतौर आप एक फेडरेशन है, आप क्या इसकी कुछ भी सरसरी तौर पे जांच नहीं करा पाए कि आप हमें कुछ कॉन्क्रीट बता पाए क्या हुआ है? सर 8 जनवरी को हमने उसको सस्पेंड किया है, उसके बाद कमेटी बनी है, सब कुछ हुआ है, सारी जानकारी आने के बाद में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी। चलिए एक चीज, बख्शा नहीं जाएगा। चलिए एक चीज और मुझे बताएं कि क्या ये नियम के खिलाफ नहीं है कि एक कोई विमेन कोच नहीं, आप बोल रहे हैं पेरेंट्स हैं, ठीक है हमने माना पेरेंट्स थे, कोई विमेन कोच नहीं होना चाहिए? आप 19 साल के एक लड़के को बतौर कोच भेज रहे हैं एक 13 साल की टीम के साथ। नहीं सर, वो उनके साथ में जाते रहते हैं, बच्चे सब साथ में खेलते हैं, तो उससे थोड़ा फाइट ना कराऊंगा, वहां जाकर के उससे चला गया वो, क्योंकि छोटे लड़के भी गए थे साथ में और सबके माँ बाप गए थे, साथ में चला गया था वो। Okay, Mr. Chaudhary, I don't know if you heard him. He doesn't even seem to know why a coach was sent like that. Don't you think it's mandatory to have a female coach? No, I don't agree that nominating a 19-year boy as a coach, and we will take a very serious view and serious action against the association if it has really happened. All right, Mr. Chaudhary. Yeah, go ahead, Mr. Chaudhary. We hope you do take action, and it's very definitely yes. We'll take action. At the moment, it is good to see that the National Federation is taking a very, very serious view of this matter, because the State Association doesn't seem to think so. So one would hope, as sports fan, one would hope that you will look into this matter and then find out why a 19-year-old coach was sent with the team, not a female coach, and what really caused this behavior. Because at the moment, whatever we can find out is based on the CCTV footage. Nothing concrete has come out. We'll keep tracking the story. Thanks so much for joining us, Sharad Shukla and Dhanraj Chaudhary.